Okay, now after the respiratory, excretory, and the nervous systems, the fourth system in this semester is the reproductive systems. Reproductive system, we don't call it as a system, we call it the systems. Because this is for the first time, that the male and the female reproductive systems are totally different. They do not have they have the corresponding organs though, but the structure is totally different. The anatomy is different, the physiology is different. And you know that the sex glands and the ducts, these are the two parts of each system, you say. Sex glands, where the male or female germ cells are formed, like in case of male, these are the sperms, and in case of female, these are the ovum. And these are formed in the sex glands. In case of female, these are the ovaries, a pair of ovaries, and in case of male, these are the testes, a pair of testes. Their location is different. You can say the ovaries, they are lying within the body cavity, in the lower part of the body, which is called the pelvis. This is called abdomen, middle portion. Upper portion is called the thorax. It has the thoracic cavity, it has the abdominal cavity, it has the pelvic cavity. So it's lying in the lateral wall of the pelvis, within the pelvic cavity, ovaries. They are not visible from surface, you see, you can't see them at the surface. But as far the testis is concerned, they are having a totally different location. They seems to be, looks like out of the body, you can say. And for this purpose, nature has provided here a protective area. It is a separate pouch, you say, it is a separate annexia of your body. That is called the scrotum. Between two thighs, you see the protection has been provided to them. देखिए कैसे कुदरत ने उसको दो थाइस के बीच में प्रोटेक्टेड एरिया में रखा है. ओवरी को तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ लाइंग विद इन बोनी पेल्विस, ह्यूज, यू सी, थिक, स्ट्रॉन्ग बोनी पेल्विस एट द लेटरल वॉल. इट इज स्लीपिंग विथ टोटल प्रोटेक्शन. वो समझ लो कि वो एक बहुत बड़े किले में अंदर प्रोटेक्टेड हालत में है, उसको तो कोई प्रॉब्लम है सच है नहीं. लेकिन टेस्टिस को प्रॉब्लम है, बिकॉज इट नॉट लाइंग विद इन बॉडी, इट्स लुक्स लाइक. It is actually outside the body, looks like outside the body, outside the body wall. और बॉडी वॉल के कुछ हिस्सों को बाहर खींच के एक पाउच बना दिया है, जैसे ना ये जैसे स्वेटर है, जैसे शर्ट है, जैसे बनियान है. मैंने तीनों में हाथ डाल के ऐसे बाहर निकाल लिया, है तो उसी का हिस्सा, बट इट्स नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, लुक्स लाइक अ पाउच. और फिर जो बाहर निकाला तो फिर थोड़ा सा अनप्रोटेक्टेड हो गया वो, और फिर नेचर ने कुछ उसके साथ रियायत बरती कि उसको उस जगह पर निकाला है जो बिटवीन द थाइज प्रोटेक्टेड है. इस पाउच का नाम है स्क्रोटम. एंड स्क्रोटम हैज द टू कंपार्टमेंट्स एंड इन ईच कंपार्टमेंट इज लाइंग द टेस्टिस. अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टेस्टिस को बॉडी से थोड़ा सा दूर ही क्यों रखा है. अब सब अंदाजा लगा है, क्या जरूरत थी इतना अनप्रोटेक्टेड करना किसी को. दैट मीन्स इट इज रिक्वायर्ड हियर बिकॉज इट नीड्स द फॉर्मेशन, द सिंथेसिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मेल germ cells. We call them the gametes. Gametes आपने सुने होंगे, male gamete and female gamete. These are the cells, kind of a cells, germ cells, not cells you can say. These are germ cells which has the capability to undergo fusion with the opposite sex, opposite gamete, to form here a single cell जिसका नाम होगा zygote. Zygo pair को कहते हैं, zygo pair, something which is formed as a result of a pairing. उसमें एक पेयर आए, उसमें से एक कंपोनेंट आएगा मेल यानी मदर से, और एक आएगा फादर से, एक मेल से एक फीमेल से. और जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि हो गई है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन की जो बाय प्रोडक्ट होगा वो जायगोट होगा. तो जायगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एंड दीज मेल गैमेट आर फीमेल गैमेट मस्ट बी सिंथेसाइज्ड एंड डेवलप्ड फ्रॉम आर in the gonads, you can say, in the sex glands. और वो sex glands हैं, testis in case of male and ovary in case of female. चलो वो तो बन तो जाएंगे, gametes बन जाएंगे, बट इन दोनों gametes अपने अपने घरों में तो बन गए. लेकिन आपको पता है ना कि मेल और फीमेल जैसे
एक लड़की और लड़का अपने अपने घरों में पैदा होते हैं, अपने घरों में बढ़ते हैं, लेकिन जब उनकी शादियां होती हैं तो वो एक जगह पे आके होती हैं, वो अपने घरों में नहीं होती उनकी शादियां। फिर इन दोनों को आना पड़ता है उस जगह पर, वो शादी हाल जहाँ पर वो आते हैं। तो यहाँ पर भी होगा क्या कि मेल, वो सेक्स जो सेल्स हैं हमारे, सेक्स सेल्स, जिसका जर्म सेल्स, वो मेल में बने हैं, वो टेस्टिस में बने हैं, वो उधर बने हैं, ओवरी में बने, बट दे हैव टू कम आउट नाउ फ्रॉम द टेस्टिस एंड फ्रॉम दी, तो अपने घरों से बाहर निकलेंगे, वो बाहर निकल के उस जगह आएंगे। और जगह कहाँ, दोनों की मीटिंग होगी। वो मीटिंग किसी तीसरी जगह पे नहीं होगी, या फीमेल में होगी या मेल में हो सकती। भैया वो निकाह या तो किसी घर में होगा, घर का मकसद ये है कि या तो वो उस लड़के के घर के करीब या फिर लड़की के घर के करीब। कुदरत ने ये जो सहूलत या जो कुदरत ने ये जो शर्फ बख्शा है वो औरत को बख्शा है। जैसे नुमन होती है, कभी ऐसे नहीं हुआ है कि कुदरत के तरीक़ाकार यही है, कभी ऐसा नहीं होता है कि लड़की की बारात लड़का लेके जाता है। कभी नहीं देखा होगा आपने कि लड़की अपनी बारात लड़के के घर लेके जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तो मेरा ख्याल है किसी भी सोसाइटी में नहीं है। तो होगा क्या, द स्पर्म्स हैव टू एक्चुअली ट्रेवल। पहले तो टेस्टिस से निकलें, खुद घर से निकलें, रोड पे आए और यहाँ भर, मकसद है कि वो फिर उनके लिए होती हैं डक्स, एंड द डक्स एक्चुअली इनटू द डक्स, ये स्पर्म्स जो होंगे ये डिलीवर किए जाएंगे जब मैच्योर हो जाएंगे, तो वो डिलीवर किए जाएंगे किसको, डक्स को। यानी घर से निकलेंगे, आएंगे कहाँ, रोड पे, और रोड से ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल करके वो बॉडी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि दूसरे ह्यूमन बीइंग में जाना है, दूसरे ह्यूमन बीइंग है, शी इज द फीमेल, क्योंकि फिर जिसके साथ उसकी मीटिंग होनी है, जिस जर्म सेल्स के साथ वो फीमेल में होते, तो इट हैज टू ट्रेवल नाउ इन द फीमेल। तो उन सारी डक्स से उनको निकाल के बाहर लाना होगा। ये पूरी डक्स यहाँ पे देखनी होगी कि ये डक्स हैं क्या, हाउ दे विल बी कलेक्टेड फ्रॉम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपके देखो एनाटॉमी ऐसी चीज़ है जो आप अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज हासिल कर रहे हो, जो कुछ आपके बॉडी में हो रहा है उसके बारे में आपको पता नहीं है, वो आप पता लगा रहे हैं। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस, एंड इट हैज़ टू बी डिलीवर्ड आउटसाइड। ये आस्ते आस्ते जमा होगा, फिर बाहर निकलेगा। ये पूरे प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट इज द डेवलपमेंट, देन इज इट्स मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन देयर डिलीवरी, देयर ट्रांसपोर्ट, देयर इजैक्यूलेशन हैज टू कम आउटसाइड। वो अकेले तो नहीं आएंगे, जाहिर है, इन फ्लूइड आएंगे, और कुछ फ्लूइड रास्ते में उनके साथ मिक्स भी होगा। ये सिर्फ टेस्टिस के ये स्पर्म्स नहीं है, वहाँ का फ्लूइड नहीं है, और भी रास्ते में फ्लूइड और जमा होगा, और वो किसी खास टाइम पे बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो इट हैज टू बी नाउ डिलीवर्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका मकसद है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा, एंड देन इट हैज टू बी डिलीवर्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी इसका मकसद है कि वो उसकी डक्स के साथ, और उसकी डक्स के साथ मीन्स नाउ दीज स्पर्म्स हैव टू बी डिलीवर्ड इनटू द डक्स ऑफ द फीमेल। और वो डक्स अब यहां से क्या देखा, ये टेस्टिस, और वहां से हम डिस्टली गए, टेस्टिस डक्स, वहां डक्स ओवरीज, उल्टा हो जाएगा ना। ऐसे हमें किसी तरीके से वो रास्तों को जोड़ना है आपस में। ये नहीं है कि टेस्टिस को ओवरी के साथ जोड़ना है, क्योंकि ओवरी के साथ भी डक्स लगी हुई हैं, तो ओवरी के साथ भी डक्स लगी हुई हैं। हमें मेल डक्स को फीमेल डक्स के साथ जोड़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि उन डक्स में आने वाला है ओवम। स्पर्म्स आएंगे मिलियंस में, ओवम आएगा सिर्फ एक। आएंगे भली स्पर्म्स मिलियन में, ओवम के आसपास पहुंचेंगे सिर्फ 300। जाएंगे कितने, जाएंगे 30 करोड़, 300 मिलियंस। एक अटेम्प्ट में 300 मिलियंस जाएंगे, लेकिन साइड पे पहुंचेंगे सिर्फ 300, और उनमें से सक्सीड होगा सिर्फ एक। क्योंकि एक होगा, क्योंकि वहां भी एक ही होगा। अगर खुदा न खास्ता एक के साथ अगर दोनों फ्यूजन की, तो आगे मामला बढ़ेगा ही नहीं। जैसे कैंडिडेट्स भली कितने भी पहुंचे, लेकिन उसमें शादी उस लड़की के साथ सिर्फ एक की होगी। भले पहुंचे 1000 कैंडिडेट, 1000 ही हो, लेकिन वहां पे सिर्फ एक सक्सीड होगा। तो दिस विल एक्चुअली बी लाइक दिस। तो वहां पर इस तरीके से हो सकता है। तो द स्पर्म्स विल बी एक्चुअली रीचिंग देयर, कहां, डक्स में स्पर्म्स रीच करेंगे,
और वहाँ जब डक्स में स्पर्म्स रीच करेंगे तो वहाँ होपफुली हम समझते हैं कि वहाँ ओवम भी प्रिपेयर होके उस दिन पहुँच चुका होगा। उस दिन हमें पता ही नहीं है कि उस दिन पहुँचा भी है कि नहीं पहुँचा। ऐसी थोड़ी कोई इन्फॉर्मेशन होती है या कोई एहसास होता है किसी को, लेकिन उस दिन का पता लगाया जा सकता है। कोशिश करें तो लगाया जा सकता है, वरना पता नहीं चलता, अंदाज़ा हो सकता है। और ये चीज़ आपको समझ में तब आएगी जब आप इसकी एनाटॉमी को समझेंगे, फिर इसके फंक्शंस को देखेंगे, तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये सिलसिला है क्या, किस डे पर ओवम तैयार होकर ओवरी से बाहर निकलता है, और ये कैसे मैचिंग है, कैसे फीमेल को मेल के इस फिजियोलॉजी के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें तो सेम हैं ही, ज़ाहिर है ह्यूमन बीइंग है, फीमेल है मेल है, वहाँ भी सेक्स ग्लैंड है, ओवरी है, यहाँ पर भी टेस्टिस हैं, जगहें अलग अलग हैं, डक्स तो हैं। और ये डक्स जो हैं वो, तो इसका मकसद ये है कि फीमेल का जो जर्म सेल है, गैमेट है, वो बाहर नहीं आता है, मेल के जर्म सेल्स को बाहर निकल के फीमेल तक पहुंचना होता है। पता है ना, बारात लड़की के घर जाती है ना, तो ये स्पर्म्स भी उसके डक्स तक पहुंचते हैं, और उसके डक्स तक पहुंचते हैं, और वहां पर होपफुली के ओवम उधर मौजूद होना चाहिए। हम उम्मीद रखते हैं कि होगा, क्योंकि हम उससे अगर होगा तो ही मामला आगे बढ़ेगा, वरना हम स्पर्म्स को अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ओवम है ही नहीं, तो आगे से फिर कौन सी फिजियोलॉजी, कौन सी एनाटॉमी तो चलो हो ही जाएगी, फिजियोलॉजी कौन सी, बात ही खत्म। ताकि हम समझेंगे कि वहाँ होगा, ताकि मामला आगे चले कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद होगी इसकी फ्यूजन, तो फ्यूजन डक्स में होती है, फीमेल की डक्ट में। यानी ये निकाह जो है, ये यूँ समझ लो कि उस लड़की के घर के सहन में निकाह होता है, उसके सहन में, यानी उसका जो कोर्ट यार्ड है उसके बाहर या कहीं पर, वहीं पे शामियाने लगे हुए हैं, वहीं पे कनाते हैं, और उधर जाके होता है ये निकाह। स्पर्म वहाँ पहुँचता है अपनी बारात लेके, और एक दुल्हा होता है उसमें जो उसके साथ फ्यूज होता है। और ये जो फ्यूजन है इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये जो दो सेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो एक जायगोट बन जाता है। और ये जायगोट जो है ना, ये तुम लोगों का हर एक का बीज है, ये सीड है, पहला सेल। जो आज तुम लोग देख रहे हो ना, हजारों अरबों सेल्स तुम्हारे बॉडी में मौजूद हैं, उनका बाबा आदम जायगोट है। जैसी शक्ल होगी जायगोट की, यानी मैं नहीं कहता हूं कि उसकी शक्ल, जैसा न्यूक्लियस और जितने क्रोमोसोम्स होंगे उस जायगोट में, आज आपके हर सेल के क्रोमोसोम्स उतने ही होंगे। अब सर वो एक था, अब तो हजारों बिलियंस हैं, तो वो उनकी डिवीजन शुरू हो जाएगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और इनको हम कहते हैं माइटोसिस। हम इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये अलग चैप्टर है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये हो गई क्या, जायगोट से इसकी डिवीजनें शुरू हो जाएंगी। और देखते ही देखते आप देखेंगे कि ये लाखों, करोड़ों, अरबों और ट्रिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं कितना जल्दी जल्दी, और ये इतना जल्दी जल्दी कि ये हमें 9 महीने के अंदर अंदर, 40 वीक्स के अंदर अंदर ये सारा सिलसिला ख़त्म करना है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कोई 280 दिनों के अंदर ये खरबों सेल्स कैसे बन जाते हैं। ये इतना जल्दी जल्दी होते हैं। शुरू में स्लो होता है, जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है स्लो, उसके बाद 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल निकलती है। तो स्टार्ट वैसे होती है। स्टार्ट एक दिन में एक माइटोसिस होती है, 1 से 2 सेल पूरा दिन ले लेते हैं, दूसरे दिन 2 से 4, तीसरे दिन 4 से 8, लेकिन उसके बाद जो स्पीड पकड़ते हैं तो फिर तो हालत ऐसी होती है कि एक ही दिन के अंदर पता चला कि 50 माइटोटिक डिवीजन, दूसरे दिन 1000 माइटोटिक डिवीजन है। देखने को सेल्स अब 1000 होंगे और कल सुबह उठोगे तो पता चला कि 2 लाख सेल बन गए। फिर तो ऐसे होता है, क्योंकि ये हमें 280 डेज के अंदर अंदर ये सारा सिलसिला, बल्कि 266 डेज तक ये सारा सिलसिला ख़त्म करना होता है। तो ये सारा जितना भी है, ये क्या है, ये डेवलपमेंट हो रही है। इस साइंस को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ हम नहीं जाएंगे ज़्यादा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये खेल कहाँ चल रहा है, डक्स में चल रहा है। और ये जो फर्टिलाइजेशन हो रही है तो किस जगह हो रही है, ये हमें देखना होगा कि कहाँ ये फर्टिलाइजेशन हो रही है। वो डक्ट हो, फीमेल की वो डक्ट कौन सी है, और वहाँ क्या बनने वाला है, जायगोट। और जायगोट अपना 1 हफ्ता पूरा कर लेगा, फिर उसके साथ साथ अब ये जायगोट जब 1 हफ्ता पूरा कर लेगा तो इसकी शादी जिस डक्ट में हुई थी वहाँ ये 4-5 दिन रहेगा। उसके बाद जो है ये वहाँ से ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करके डक्ट के दूसरे बड़े हिस्से में एक नया आर्गन है, वो उसका नाम यूट्रस है। यूट्रस सुना होगा आपने।
उस यूट्रस के अंदर ये आके अपना बसेरा वहां कर लेगा। कब तक? जब तक वो 36-38 जो वीक हैं वो खत्म नहीं हो जाते, वो वहां अपना बसेरा कर लेगा। तो यूट्रस की वाल के साथ वो चिपक जाएगा, ऐसे जैसे जैसे ना दीवार पे एक छिपकली चिपकी हुई होती है, लेकिन छिपकली तो नजर आती है ना, ये दीवार के अंदर चला जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे बीज को आप डाल देते हैं कहाँ? सॉइल में। ये बिल्कुल प्लांट की तरह ही है। ह्यूमन बीइंग, और देखिए ह्यूमन और प्लांट, ये बायोलॉजी में ये पागल नहीं है कि इन लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर, बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट बनाया हुआ है कि नॉट, ये इसकी बॉटनी है और ये जूलॉजी है। ये बिल्कुल सही बनाया है। और आजकल तो आपने देखा होगा बायोलॉजी की एक ही बुक है और उसके जितने भी सिस्टम्स हैं एनिमल और प्लांट के एक साथ पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वरना जूलॉजी का जो लेक्चरर होता है उसकी एमएससी अलग है, बॉटनी वाले की एमएससी अलग है, लेकिन किताब उनकी सेम है। इंटर की किताब देखे सेम है, पहले अलग अलग होती थी, अब उन्होंने देखा कि ये है ही सेम। ह्यूमन और इसकी जो फिजियोलॉजी है बहुत ही आइडेंटिकल है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सॉइल में तुम बीज अंदर दबा देते हो, तो ये भी यूट्रस के अंदर अंदर दब जाता है। तो यूट्रस का कौन? वो जो यूट्रस का एपिथेलियम होता है। वो एपिथेलियम, ये नहीं है कि एपिथेलियम वैसा ही रहता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एपिथेलियम की शक्ल बदल जाती है। वो ऐसा नहीं रहता, वो 10 गुना थिक हो जाता है, स्पॉन्ज की तरह, क्रीम जैसे होता है, इतनी मोटी हो जाती है। और फिर इसके अंदर बीज दबा देंगे हम लोग, और जब बीज अंदर दब जाता है तो फिर अंदर ग्रो करता है ये। और जब ग्रो करेगा, 6 हफ्ते ग्रो कर चुका होगा, 8 हफ्ते जब गुजर जाएंगे तो हम इसका शुरू में हम नाम डाल देंगे। इन 8 हफ्तों के अंदर अंदर जो जायगोट के नाम पे आया था और जायगोट से आगे बढ़ा तो ये 6 सेल, 8 सेल, 10 सेल फलां, तुम रास्ते में उसका नाम मोरिला डाल देते हो आप। और फिर आगे चल के उसका नाम ब्लास्टूला डाल देते हैं, ब्लास्टोमियर्स वगैरह ये, और उसके बाद अंदर दबा देते हैं ना जब हम उसको सॉइल के अंदर, तो फिर इसका नाम पड़ जाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो तब जब उस सॉइल में अंदर, वो सॉइल का मकसद है कि वो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम उसके अंदर दब जाएगा, तो इसके साथ आप ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो अंदर देख रहे हैं यहाँ से ये, और यहाँ से ये ट्रेवल करके इसके अंदर अंदर दफन हो जाएगा इधर। और जब अंदर दफन हो जाए, इसके अंदर बरी कर जाए, अंदर पेनिट्रेट कर जाए, तो फिर हम इसका नाम डाल देंगे एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो अगर अपने 8 हफ्ते गुजार गया, यहाँ पर 2 महीने गुजार गया, तो अगले 7 महीनों में उनका नाम हो जाएगा फीटस। और जब 9 महीने पूरे हो जाएंगे तो फिर ये फीटस जो होगा वो मुकम्मल एक ह्यूमन बीइंग की शक्ल में यहाँ से बाहर आ जाएगा, और ये न्यूनेट कहलाएगा, इन्फेंट, ये न्यूनेट कहलाएगा। अब ये न्यूनेट जैसे बाहर आ गया, न्यूली बॉर्न जो फीटस, जो अभी फीटस नहीं रहा, अब न्यूली बॉर्न चाइल्ड हो गया है, तो ये जैसे बाहर आएगा तो हम उसको कहते हैं डिलीवरी, तो हम इसको कहेंगे पार्चुरेशन। वो जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द बेबी थ्रू व्हाट? थ्रू द लास्ट डक्ट ऑफ द ह्यूमन, ऑफ द फीमेल। जिस आर्गन में इस फीटस को वो डेवलप किया गया और उसको पनाह दी गई ताकि ये यहाँ पर डेवलप हो जाए, इस आर्गन को, उसका नाम था यूट्रस। फिर यूट्रस से बाहर डिलीवर किया गया इसको, और ये है जो बाहर ओपन होगा। बाहर ओपन होगा तो इसका जो ओपनिंग है ये बाहर की तरफ होगी। और यही वो जगह थी जहां पर हमने मेल की डक्ट को यहां कनेक्ट किया था। वो मेल की डक्ट को यहां हमने कनेक्ट किया, और मेल की डक्ट है वही, इत्तेफाक से मेल की डक्ट वही है जहां से यूरिन भी पास होता है। फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में इसलिए ऐसा नहीं है कि यहां सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स को पास कराने का रोल प्ले नहीं कर रहा है। यहां पर गैमेट्स को पास कराने को, यहां तो गैमेट तो पास ही नहीं होगा, यहां सिर्फ मेल गैमेट पास हो जाएगा, और वो स्टे करेगा थोड़ी देर के लिए। कहां? इस आर्गन में जो डक्ट है हमारी। यानी मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जोड़ने वाला जो है ना, वो ये है जिसको हम कहते हैं यहां पर वजाइना। और ये वजाइना, इसका ओपनिंग कहां होगा? सरफेस पर। और यहां इस वजाइना के साथ कांटेक्ट डेवलप करेगा कौन? मेल डक्ट, और मेल का आखिरी हिस्सा जहां से यूरिन भी इत्तेफाक से पास होता है। इसलिए मेल के अंदर यूरिनरी और जेनाइटल सिस्टम जुड़े हुए होते हैं, फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में यूरिनरी सिस्टम बिल्कुल अलग है, जेनेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल अलग है। और ये जो यहाँ पर हमने देख रहे हैं, ये आर्गन्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ इस आर्गन का बाहर का सुराख दिखाई देता है बस। इसलिए हम इनको कहते हैं इंटरनल जेनाइटल आर्गन्स। लेकिन जो आर्गन्स इसके बाद होते हैं, जो नजर आते हैं,
उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और फीमेल में फिर उनका नाम होता है वल्वा। सबको मिला के हम कहते हैं क्या? वल्वा। इसको वल्वा कहते हैं। फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन्स? जो बाहर नजर आते हैं। तो हमें यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी करना होगा। और ये जो मैंने आपको बताया, यहां आके क्या लगता है? यहां आके जायगोट नहीं, जायगोट तो एक सेल है, वो 2 बन जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 जब हो जाएंगे तो 4 दिन गुजर चुके होंगे और फिर ये आ जाएगा यूट्रस के अंदर और यूट्रस के सवाल को चिपक दे जाएगा, ऐसे बिल्कुल जैसे चुपकली जो है ना वो दीवार को चिपक जाए। और दीवार को चिपक जाएगी कि इसके अंदर अंदर घुस जाएगी और गायब ही हो जाएगी, जैसे कुछ था ही नहीं। तो अंदर गायब हो जाएगी इसके अंदर। ये हफ्ता ये होगा पहला हफ्ता, कोई 6वां दिन, 6th डे। और फिर उसके अंदर जैसे जाएगी, 1 हफ्ता तो गुजर चुका है और अगले जो 37 वीक्स होंगे अगले, वो सारे के सारे अंदर ही होंगे ये। तो इस ऑर्गन की बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये ऑर्गन मोस्ट ऑफ द टाइम यही वो ऑर्गन है जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होगा, फीटस डेवलप होगा, और जब अपने पूरे दिन कर चुका होगा तो यहाँ से बाहर डिलीवर होगा। डिलीवरी को कहते हैं पार्चुरेशन। और यहाँ जो ये चिपक गया है ना, एक दफ़ा चिपक गया तो हम इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। देखो नाम कैसे रखा हुए हैं, इम्प्लांटेशन। प्लांट की तरह तुमने लगाया है उसको सॉइल में ताकि वो दरख्त बन जाए। तो ये यहाँ पर प्लांट की तरह उसको लगाया तो उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले ये यहाँ पर, इसका नाम तो हमने यूट्रस डाला, लेकिन यूट्रस है कि यूट्रस के साथ ये डक्ट लगी हुई है वो दोनों साइडों से। क्यों डक्ट लगी हुई है? जो यूट्रस को कनेक्ट करेगी किसके साथ? जहां से ये फीमेल जेनिटल, जहां से यूं समझ लो कि जहां से ये दुल्हन आएगी। और कहां से आएगी? ये गोनाड है जो उसका घर है, जहां ये बना है। कौन? ओवम बना है जहां से। और वो होंगी क्या? वेरी गुड। तो ये होंगी ओवरीज। जाहिर है 2 तरफ होंगी। और ये ओवरीज जो होती हैं, दोनों ओवरीज में से एक सक्सीड हो जाती है, हर महीने एक ओवम यहां से निकालेगी। फिर लेफ्ट निकाले कि राइट निकाले हमें नहीं पता होता। एक ओवम हर महीने एक ओवम बाहर आएगा। तो ये हर महीने एक ओवम यहां से बाहर आएगा, और एक ओवम डेवलप होकर जब बाहर आएगा तो फिर इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। सिंपल सी चीज है ना, टू डिलीवर द ओवम फ्रॉम द ओवरीज, वन ऑफ द ओवरीज। ये दोनों से नहीं आएंगे। अगर दोनों से आ गए ना तो एक की जगह पे 2 बच्चे भी हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ओवरीज। तो ओवरी से निकल के ओव्यूलेशन आ गया, और ओव्यूलेशन यहां ओवम आ गया तो ओवम को कहां डिलीवर कहां करना है? ये ऐसे ही आ गया है क्या, या इसको फर्टिलाइज होना है? और फर्टिलाइज ऐसे तो नहीं होगा ना हवा में, स्पर्म्स को पहुंचाना है। और स्पर्म्स को पहुंचाना है तो कहां पहुंचाना है? बाहर निकाल के ऐसे ही डाल देना है कि ये डक्ट पकड़ लेगी इसको। तो इसका मकसद है कि गोनाड के बाद डक्ट आएगी, और ये डक्ट किसके साथ कनेक्टेड होगी? यूट्रस के साथ। तो इस डक्ट को, इस ट्यूब को कहते हैं यूट्राइन ट्यूब। वैसे इसका दूसरा नाम फलोपियन ट्यूब भी है। तो यूट्राइन ट्यूब को दूसरा नाम क्या देते हैं? फलोपियन ट्यूब्स। तो ये भी दायरे 2 होंगे। और ये जो फलोपियन ट्यूब होगा किसके साथ कनेक्ट करेगा? यूट्रस के साथ। और ये यूट्रस के साथ जब कनेक्ट करेगा तो इस फलोपियन ट्यूब का एक हिस्सा बाकी फलोपियन ट्यूब से थोड़ा सा डायलेटेड होता है। और डायलेटेड चीज़ों को उमूमन हम एम्प्यूला भी कहते हैं। एम्प्यूला। नैरो चीज़ों को इस्थमस कहते हैं, और डायलेटेड को हम एनाटॉमी में, ये बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ इस्तेमाल हुआ है, बहुत जगहों पे इस्तेमाल हुआ। एम्प्यूला वाइडर चीज़ को कहते हैं, और नैरोएस्ट चीज़ों को हम इस्थमस कहते हैं। तो यहाँ जो है वो ओपन होने से, यूट्रस में कनेक्ट करने से पहले यहाँ एक डायलेटेड पोर्शन होगा, और ये वो चीज़ होगी जहाँ ये जो ओवम डिलीवर हुआ है, ओव्यूलेट हुआ है, जो वो जब पकड़ा गया यहाँ किसके साथ? फलोपियन ट्यूब के साथ। तो फलोपियन ट्यूब ने अपने ल्यूमन में इसको ट्रेवल कराया, ट्रेवल कराते कराते इस डायलेटेड पोर्शन में इसको इंतजार के लिए रोक के रखा यहाँ पर। ये है वो यूट्राइन ट्यूब का एक डायलेटेड पोर्शन, ये है वो शादी हाल। ये समझ लो कि ये है उस दुल्हन के घर के बाहर का कोई कोर्ट यार्ड जहां पर बारात का इंतजार किया जाएगा, जहां स्टे करेगी दुल्हन और आएगी बारात। यहां पर इधर नहीं आएगी, यहां आएगी।
या शादी हाल कहो, या समझ लो कि, क्योंकि हम तीसरी चीज़ नहीं कर रहे हैं ना, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक घर जो है वो लड़का है, एक दूसरा घर जो है वो लड़की का है। ये लड़की का घर है, तो ये शादी हाल नहीं है। यूँ समझ लो कि उसके घर का कोई कोर्ट यार्ड है बाहर, जहाँ उसने एक पंडाल सजाया हुआ है, जहाँ बारात को आना है। तो ये जो जगह है ये एम्पुला है, किसका? फलोपियन ट्यूब का। फलोपियन ट्यूब का एम्पुला है, और यही है वो वेन्यू है जहाँ पर यूँ समझ लो कि कुदरत की एक बहुत बड़ी तख्लीक, बहुत बड़ा इवेंट, जिसकी वजह से ये सब हैं, जिसकी वजह से ये हम हैं, वो इतना बड़ा इवेंट यहाँ होने वाला है। ये वो एरिना है, यूँ समझ लो कि इस जगह पर वो एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का खेल ख़त्म करो तो दुनिया ख़त्म, हम आखिरी ह्यूमन बीइंग होंगे फिर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से ही मामला आगे बढ़ेगा। तो ये वो जगह है, ये वो जहाँ पर ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है आपकी ज़िंदगी का, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग के ज़िंदगी का, ह्यूमन बीइंग के इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा इवेंट यहाँ होने वाला है। और यहाँ क्या होने वाला है? जहाँ पर ये ओवम यहाँ बैठा हुआ है और स्पर्म्स यहाँ आने वाले हैं। स्पर्म्स तब आएंगे जब यहाँ पर जब डक्ट में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और जब ये डक्ट में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो डक्ट कौन सी? वजाइना। और वजाइना में जब स्पर्म्स आएंगे तो कितने? वो पूरी बारात होगी, जहाँ 30 करोड़ के करीब स्पर्म्स जो हैं वो फ्लूइड होगा। कितना? 2 ml। 2 ml आप समझ सकते हैं, छोटी सी सिरिंज में जितना फ्लूइड आता है इतना फ्लूइड होगा। और इस फ्लूइड के अंदर 30 करोड़ जो है ना वो स्पर्म्स मौजूद होंगे फ्लूइड के साथ। जैसे हमारा ब्लड होता है, अब ब्लड इतना थोड़ा सा ले आते हैं, उसमें पता चलता है 55 लाख तो आरबीसी हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर में। इतनी सी स्पेस होती है, इतनी सी स्पेस में जो ब्लड है उसके अंदर 55 लाख तो सिर्फ आरबीसी होते हैं। तो यहाँ 2 ml के साथ कितने स्पर्म्स आएंगे? 300 मिलियन स्पर्म्स आएंगे। और ये स्पर्म्स ट्रेवल करेंगे किससे? यूट्रस से, उसकी कैविटी से यहाँ आएंगे तो कहाँ इंटर हो जाएंगे? यूट्राइन ट्यूब में। वैसे तो यहाँ भी जाएंगे, लेकिन यहाँ इनको कोई ओवम नहीं मिलेगा, एक तरफ कहीं से कहीं मिलेगा, दोनों तरफ चले जाएंगे। और यहाँ पहुँचते इधर सक्सीड होंगे कितने? यहाँ पिंडाल तक पहुँचते आएंगे सिर्फ 300। और 300 जब आएंगे यहाँ पर तो सराउंड करेंगे किसको? एक दुल्हन को, यानी एक ओवम को। और उनमें से एक सक्सीड होगा इसके साथ फ्यूज होने में। और जैसे उसके साथ फ्यूज हो जाएगा तो ये फ्यूजन और ये फ्यूजन मिलके अब एक जोड़ा, यानी एक सेल, एक जायगोट बना देगा। जायगोपेयर्ड चीज़ को कहते हैं। और जो सेल बन जाएगा उस सेल में आधी कंट्रीब्यूशन होगी स्पर्म की जो सक्सीड हुआ है, और आधी होगी ओवम की। मिलके जो जायगोट बना है, समझ लो कि ये किसी भी ह्यूमन बीइंग का पहला सेल है, फर्स्ट सेल। और उसके अंदर मौजूद होंगे क्रोमोसोम्स। कितने? ह्यूमन स्पीशी में मौजूद होते हैं कितने? 46। तो कभी तुमने 46 नंबर क्रोमोसोम सुना है? कभी 46वां नंबर क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग में कभी सुना है? कभी नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना। 45 सुना है कभी? तो पेयर में होते हैं तो पेयर्स बोलो ना। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो 46 होते हैं? आप बोल सकते हैं कि 23 पेयर्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास 23rd क्रोमोसोम होता है, 24th ही नहीं होता, क्योंकि फिर 23rd 2 दफा होते हैं, 22nd 2 दफा होते हैं, फर्स्ट 2 दफा होते हैं, दूसरा नंबर 2 दफा होता है। तो इसका मकसद यह है कि ये 2 दफा 2 करेंगे तो ये 23 दफा 2 हो जाएगा, तो ये 46 हो जाएंगे। लेकिन नंबर कभी तुम उन पर 46वां नहीं डाल सकोगे। तो इसका मकसद ये है कि ये क्या होते हैं? ये पेयर्स में होते हैं। पेयर्स में क्यों होते हैं? क्योंकि आधा शेयर मिलता है हमें, मदर से आधा शेयर मिलता है। तो 1 से लेके 23 तक फादर से मिलता है, जो स्पर्म में से ट्रेवल होते हुए आता है। और 1 से लेके 23 में होता है जो पहले ही वो दहेज किसके पास मौजूद है? ओवम के पास मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं कि सर ओवम क्या सेल नहीं होता क्या? ओवम क्या स्पर्म सेल नहीं होता क्या? वो सेल नहीं होता, वो जर्म सेल होता है। क्या फर्क है दोनों में? जर्म सेल वो सेल होता है
जिसके न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो पेयर्स में नहीं होते, अनपेयर्ड होते। यानी न्यूक्लियस के अंदर में जब काउंट करना बैठ जाता हूं तो वहां मुझे 46 क्रोमोसोम्स नहीं मिलते, 23 मिलते हैं। आप सोचिए ये कौन सा जादुई सेल है? सेल तो हमेशा ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम का बना हुआ होता है, जिसमें 23 के पेयर्स में होते हैं 23। ये कौन सा सेल है जिसके अंदर हैं ही 23 क्रोमोसोम्स, उसमें तो पेयर ही नहीं है? तो ये जादू है। और ये काम कौन करेगा? इसके लिए सेक्स ग्लैंड्स तैयार किए गए हैं जो सेलों को पकड़ पकड़ के उनको ऐसा बनाएंगे। क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल 23 का तो होता ही नहीं है। होता है क्या भाई? कहां से लाओगे तुम 23 के सेल, जबकि तुम्हारा जो सेल था वो जायगोट था। उस जायगोट में तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उससे निकलता हुआ हर सेल 46 का ही होगा ना। तो ये 23 का कहां से टपक पड़े? 23 के तो सेल्स ह्यूमन बीइंग में होते ही नहीं। तो ये 46 के सेल्स किधर से आ जाते हैं? ये 46 के सेल इन्हीं सेलों से आ जाते हैं। इन सेलों को ये बना के 23 के मटेरियल बना के सेल्स बनाने का जो रोल दिया गया है किसको? टेस्टिस को। इन केस ऑफ मेल और फीमेल में यही काम ओवरी को दिया गया है। तो ये जो सेल्स निकालती रहती है ना, ओवम वगैरह, ये वो, इसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23। और जो 23 होते हैं इसमें से 22 को कहा जाता है ऑटोसोम्स और एक को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। और वो सेक्स क्रोमोसोम ओवम में हमेशा एक्स होता है, फीमेल में कभी वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, वो हमेशा एक्स होता है। लेकिन वो जो स्पर्म्स होते हैं ना, जो स्पर्म्स अंदर एंटर हुए हैं जिसमें भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, आप बोले से वो 23 क्रोमोसोम किधर से आ गए? भाई किधर से आ गए? तुमने ओवरी से पूछा कि तुमने किधर से लाए? उसने बनाया है। 26 क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम वाले को 23 में कन्वर्ट किया है उसने। उसके पास ये सलाहियत है। तो ऐसी सलाहियत टेस्टिस में भी है। और टेस्टिस में जो क्रोमोसोम्स, टेस्टिस में जो सेल बनेंगे जिनको गैमेट कहोगे, जो फर्टिलाइजेशन करेंगे, वरना को सेल का फर्टिलाइजेशन करते हैं क्या? सेल ऑर्गन बनाते हैं। किसी ने एपिथेलियम बना दिया, किसी ने मसल बना दिया, किसी ने कनेक्टिव टिश्यू बना दिया, किसी ने न्यूरॉन बना दिया। सेलों का तो ये काम है। ऐसे सेलों को बोलते हैं सोमेटिक सेल्स, जो बॉडी बनाएं। लेकिन उनमें से चंद सेल्स ऐसे होते हैं जो बॉडी नहीं बनाते, जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। जिसे ना सिविलियंस होते हैं करोड़ों में, लेकिन कुछ होते हैं आर्मी, फौजी, वो थोड़े होते हैं। तो यहां पर भी थोड़े फौजी यानी जर्म सेल्स और बहुत सारी आर्मी, बहुत सारे सिविलियंस, सोमेटिक सेल, जिससे आर्गन्स बनते हैं। और ये वाले सेल्स क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सवाए फर्टिलाइजेशन के, रिप्रोडक्शन के, जायगोट बनाने के, ताकि एक बंदे से दूसरा बंदा क्रिएट हो जाए, एक स्पीशी के एक बंदे से उसके ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट हो जाए। तो कुछ सेलों को बचा के रखेंगे। तो क्या करेंगे? उनके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स के वो पेयर्ड चीज को अनपेयर्ड बनाएंगे। और अनपेयर्ड जब बनाएगा ओवरी तो क्या बनेगा? अनपेयर्ड बनाएगा ओवरी तो बन जाएगा हमारा ओवम। और ओवम में क्रोमोसोम्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 22 ऑटोसोम्स एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम, इट मस्ट बी एक्स। लेकिन जैसे ही टेस्टिस की नजर दौड़ाओगे, टेस्टिस को देखोगे, और वो भी यही खेल करेगा। वो भी 46 क्रोमोसोम को आधा करने वाला है। वो भी 23 करेगा। लेकिन 23 जब करेगा तो आधे बनाएगा 22x वाले, तो आधे बनाएगा 22y वाले। वहां 2 वैरायटीज बना देगा। सर वो सिर्फ लास्ट वाला होगा ना, 23 वाला। बाबा देखो, अब 22 से ऑटोसोम्स होंगे। अगर 22 ऑटोसोम्स होंगे और 23rd विल बी द सेक्स क्रोमोसोम्स। हाँ सर, वो उसमें चेंज होगा। आप बोले सर एक्स वाले को पहले नंबर पे डाल देते हैं, लास्ट में क्यों डाला? सर वो फीमेल और मेल में ऑटोसोम। नहीं, ऑटोसोम का क्या मतलब है? ऑटोसोम में पहले वाले को पहले नंबर पे क्यों रखा? सर वो पहले वाला फीमेल का, पहले वाला मेल का। चलो छोड़ो पहले वाले को, मेल फीमेल में ये हो ना हो, तुमने यहां उसको पहला नंबर क्यों दिया? खुदा ने कहा नंबर दिया है? नंबर तुम लोगों ने दिया है, ये तुम्हारी शरारत है। क्रोमोसोम नंबर 2 पे अल्लाह ने लिख दिया क्या है? 2। ये तो तुम लोगों ने दिया है ना उसको, नंबर 2 उसको बोला है। वो आपके से 1 2 के साथ बैठा हुआ होता है। कहां बैठा हुआ होता है 1 2 के साथ? 1 इधर बैठा हुआ होता है, 2 आखिर में बैठा हुआ होता है। और तुमने उसको ढूंढ ढूंढ के बोला तुम 2 हो। भाई क्यों 2? मुझे बताओ तो सही।
कुछ तो होगा ना, ऐसे थोड़ी ना कोई। आप जाके गूगल में देखना 23 क्रोमोसोम्स को, जो पहला वाला क्रोमोसोम होता है वो सबसे लंबा होता है, जो दूसरा होगा उससे थोड़ा छोटा होगा, जो तीसरा होगा उससे छोटा। ये साइज़ के हिसाब से, तो ज़ाहिर है साइज़ का मकसद है कि उसके अंदर डीएनए का मटेरियल, ये सब के हिसाब से ही उसको 1 2 3 कहा गया है। ऐसे नहीं कि किसी को भी 1 कर दो और अपनी मर्जी से 2 कर दो, जो पहले नज़र आया वो 1, जो दूसरा नज़र आया ये 2, ऐसा नहीं है, उसकी साइज़ के हिसाब से। इसका मकसद है कि जो सेक्स क्रोमोसोम 23 पे बिठाया है हमने, वो सबसे छोटे होते होंगे, वो तब उसको 23 बताया है। और जब जो देखा उसको तो वो बाकियों से मुख्तलिफ होते होंगे। तो पहले हैं ऑटोसोम्स और आखिरी है सेक्स क्रोमोसोम।